Hello everyone, once again welcome to the selection classes. So we have five important question and you can say must do question before that examination. And these are from percentage chapter. Hopefully you all have done percentage and these are just the revision or the challenge we can say you have to solve the questions, right? So first question is like that an empty metal container without its handle weighs 15% of what it weighs when completely filled with a particular liquid. So we have a container that is empty and that is filled with liquid, right? Filled with liquid. And in both cases, there is no handle attached, without handle, right? Now it is saying कि जो empty container है, this is empty container and this is filled container or I can say completely filled. Whenever I'm saying filled, so I will be using completely filled, right? So it means कि यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर इसका वेट 100x है, हाँ, दिस इज द वेट ऑफ द कंप्लीटली फील्ड एंड विदाउट हैंडल. सो आई हैव टेकन 100x. तो एम्प्टी का वेट कितना हो जाएगा? एम्प्टी का वेट वुड बी 15%, दैट इज 15x, बिकॉज इट इज 15% ऑफ what when it was completely filled with a particular liquid. Hopefully it is clear. Now in both cases we don't have any handle attached, right? Now this saying after adding the handle, now handle has been, I can say, attached in both cases, so I am making it again so that you can understand it. Now green color one is the handle attached, right? And it is completely filled once again and it is completely empty, right? Now in the given condition, when it is filled or when the handle was attached, the weight of the fully filled container increases by 5%. Now weight become 105x. So you can easily think why the weight increases just because of the handle. So I can conclude that is weight of handle is nothing but 5x. Hopefully it is clear, right? 5x. Now एक कंडीशन आपके पास गिवन है, इफ द वेट ऑफ द पार्टली फिल्ड कंटेनर इज 1/3 ऑफ द कंप्लीटली फिल्ड कंटेनर, राइट? तो मान लेते हैं जो कंटेनर है इसको मैंने पार्टली फिल कर दिया किसी जो लिक्विड है, अब इसका जो वेट है वो 1/3 है when it was completely filled with the handle, that is 105x. So 35x, right? So this is weight partly filled, right? तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आया होगा. नाउ इट इज सेइंग एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कंटेनर इज यूटिलाइज्ड. कितना फ्रैक्शन इसका यूटिलाइज्ड है? यूटिलाइज का मतलब क्या होता है? वी हैव टू वर्क ऑन द वॉल्यूम और थिंक फॉर द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, राइट? वी हैव टू जस्ट टेक आउट द weight of the empty container or container with the handle. We have to just think like a glass has own weight, and when we pour water, तो we have to find the volume कि वाटर का वॉल्यूम कितना है एक्चुअली, उसको हमने कितना यूटिलाइज करा है, राइट? होपफुली. तो चलिए अगर मैं बात करता हूँ कैपेसिटी, तो हाँ, टोटल कैपेसिटी कितनी है कंटेनर की? कैपेसिटी मतलब विदाउट वेट, कितना पानी वो बेयर कर सकता है, कितना पानी उसके अंदर क्वांटिटी आ सकता है. तो टोटल वेट अगर मैं देखता हूँ 105x है. दिस इज फील्ड लिक्विड है, इसके अंदर लिक्विड फील्ड है, इसमें हैंडल भी अटैच्ड है. तो पहले तो मैं हैंडल का वेट माइनस करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि 100x इसका वजन है, जो मैंने ऑलरेडी अज्यूम किया था. लेकिन अगर मैं इसमें से एम्प्टी का, जो एम्प्टी है उसका भी वजन माइनस करूंगा, तो आई कम टू नो कि जो इसमें फील्ड लिक्विड है उसका जो वॉल्यूम है वो 85x है. होपफुली इट इज क्लियर. नाउ सेकंड जो है पार्टली फील्ड कैपेसिटी, पार्टली फील्ड. तो पार्टली फील्ड कैपेसिटी कितनी है? टोटल आपके पास पार्टली फील्ड 35x है, उसमें से जो खाली कंटेनर का वजन है 15x है और जो हैंडल का वजन है वो 5x ही बचेगा आपके पास, दैट इज 15x. सो ये जो रेशियो निकालना है कि व्हाट परसेंट हैज बीन और व्हाट फ्रैक्शन हैज बीन यूटिलाइज्ड. सो वी हैव यूटिलाइज्ड 15x आउट ऑफ 85x. सो दैट विल गिव मी 5 से 3, 5 से 17, 3:17 या 3/17 is the right answer. Very beautiful question. Hopefully you understood. If you have not if you are not able to understand, you can leave your comment, you can rewatch, definitely you will be able to understand. Moving to the next question. Again very beautiful question. It goes like
Arvind bought a certain number of pastries of type A, B, and C. So we have three varieties of pastry A, B, and C. Now each pastry for giving for each pastry as much rupee as there were number of pastry, right? इसका मतलब जितनी पेस्ट्री है उतने उसका प्राइस है। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्वांटिटी मैं ऊपर लिखता हूँ ए, इसकी क्वांटिटी बी, इसकी क्वांटिटी सी, और इसका जो प्राइस है जो रुपीज़ है सेम रुपीज़ है जितनी उसकी क्वांटिटी है, तो ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, राइट। होपफुली यहाँ तक समझ में आया। नाउ ही बॉट 6 पेस्ट्रीज, इट मीन्स तीनों का जो समीशन है पेस्ट्रीज का मिला के 6 आएगा, एंड ऑल्सो स्पेंड 14 रुपीज़। तो अमाउंट कैसे निकलेगा? अमाउंट तो एक पेस्ट्री की कीमत ए रुपीज़ है तो ए की हो जाएगी ए स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर। So a square plus b square plus c square, that will give value 14, right? Now it is given by what percent is the price of b more than that of c if the pastry of the type b is cheaper। ठीक है, तो अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ, टाइप बी चीपर है देन ए एंड डीयर देन सी। ठीक है, तो सी से बड़ा है इसका प्राइस और ए से छोटा है, राइट। छोटा कर दिया तो छोटा करना है, मतलब हाँ दिए ए सबसे कॉस्टली है, बी सेकंड नंबर पे कॉस्टलियर है, एंड सी जो है वो सबसे लोएस्ट आई कैन से प्राइस में है। तो कितना परसेंट जाता है? ठीक है, अब यहाँ से इस बात की गारंटी है, अगर आप थोड़ा सोच पाते हैं कि यहाँ पे जो ए बी सी होगा दैट वुड बी इंटीजर, वो भी पॉजिटिव वाला। क्यों? क्योंकि पेस्ट्रीज कैन नॉट बी आई कैन ए नंबर। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं पेस्ट्रीज जब भी आप लेंगे फुल लेंगे, और कोई भी शॉपकीपर आधी पेस्ट्री नहीं देता, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा। ठीक है, तो आइडियल केस की बात करें, इसका मतलब एबीसी अगर इंटीजर है तो वी हैव टू थिंक फॉर द कॉम्बिनेशंस, राइट। और उसने सारे खरीदे हैं इस ईच पेस्ट्री, तो व्हाट कैन बी द वैल्यूज? तो आई कैन से 1 1 4 और 1 2 3। अब ये इधर उधर घूम सकते हैं बट नंबर तो इतना ही होने वाला है, राइट। इसके अलावा कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं। तो अगर मैं इनका, ये तो ए बी सी की वैल्यू है, इनका स्क्वायर करके देखते हैं। हाँ, पहले वाले केस में, हाँ, अगर ए बी सी को आपने 1 1 4 लिया है तो ए स्क्वायर कितना होगा 1, बी स्क्वायर कितना होगा 1, सी स्क्वायर कितना होगा 16। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वुड बी 18, बट दैट इज नॉट द केस। वाई सो? बिकॉज इट हैज़ टू बी 14। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये फेल हो जाएगी। हाँ, दिस इज नॉट द केस। सेकेंड केस ए बी सी, यहाँ पे हमने 1 2 3 अज्यूम कर लिया, तो a square plus b square plus c square, that is the amount, so that would be 1 plus 4 plus 9, so 14 we can say। yes, we got the amount as 14। it means कि यहाँ पे जो पेस्ट्री खरीदी गई है 1 2 3 खरीदी गई है, we have the amount also, right, we have the amount जो कि आपके पास मिल चुका है। इसका मतलब आपके पास अगर मैं बात करूँगा सबसे बड़ी जो वैल्यू है that is 3, तो 3 would be a, क्योंकि आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर भी दे रखा था। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो वैल्यू आप बोलो या क्वांटिटी बोलो सबको सेम ही हो जाएगा, बिकॉज वैल्यू और क्वांटिटी सेम टू सेम है। सी की वैल्यू 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज प्राइस ऑल्सो एंड दिस इज क्वांटिटी ऑल्सो, वट एवर यू वॉन्ट टू से। नाउ इट इज सेइंग बी इज वॉट परसेंट मोर देन सी, सो बी इज वॉट परसेंट, सी इज 1, बी इज 2, भाई बी इज 2 एंड सी इज 1, सो दिस इज 100% मोर हो जाएगा, बिकॉज एक का डबल हो गया तो 100% मोर का केस है। होपफुली यू गॉट द आंसर। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन है 5 के 5, राइट। 20% ऑफ द स्टूडेंट्स इन a class failed in the examination, no problem। ठीक है, तो सपोज वी हैव 100x स्टूडेंट्स एंड पास एंड फेल, एंड आई कैन से इट 20%, तो ये 20x फेल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पास वुड बी 80x, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, हालांकि इसमें श्योरिटी नहीं है बट फेल की श्योरिटी 20। आफ्टर द स्टूडेंट हु फेल्ड 75% वर मेल, तो यहाँ पे मेल और फीमेल की बात करते हैं, इसको मैं फेल लिख देता हूँ। तो इट इज सेइंग 75% आर मेल, तो 75% ऑफ 20x वुड बी दैट इज 15x, राइट। तो these are male and female will be then 5x, ये फीमेल है। Now male student who failed constitute 90% of the economically poor section in the class। it means कि जो 15x है
दैट इज इक्वल टू 90% ऑफ इकोनॉमिकली पुअर स्टूडेंट, ईपीएस इसके नाम से दे दिया। तो यहाँ से ईपीएस कितना हो जाएगा बेसिकली 15x इंटू 100/90, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 15 6 या 90, आई कैन से 100x/6। होपफुली इट इज क्लियर। नाउ we have to find the ratio of the number of economically poor student to the number of students in the class, right? So how many students are economically poor? That is 100x/6, and total students I have taken 100x, so we have to find the ratio. That is 100x/6 divided by 100x. That ratio is nothing but 1:6. Option number 1 is the right answer. यहाँ पे भी गलती होने के chances हैं, तो you have to read the question carefully. Some of the students might think that this 15x is actually 90% we have to calculate of 15x. तो यहाँ से थोड़ा सा गलत होने के chances वहाँ पे बन सकते हैं। We have the next question. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट आप इसको एक बार करके देखना, उसके बाद सोचना। Now it is saying 50% of the student in a class are girls, right? So if I take 100%, or I can say 100% is 1 actually, right? So 50% are girls. So of course 50% would be boys. So girls would be 1/2 and boys would be 1/2. No problem in that, right? Girls and boys are equal. Now 1/3 of the girls are from Mumbai. तो यहाँ से जो मुंबई वाली लड़कियां हैं 1/3 of 1/2 है, that is 1/6. Hopefully clear. तो now 2/3 of the girls from Mumbai scored at least 70% marks. तो जो भी कोई लड़की मुंबई से है उसका 2/3 स्कोर्ड 70% ना, less than equals to 70% of the marks in science. So that will give me 1/9. It means 1 out of 9 girl score 70% or more than 70% in the science. Then we have to find the number of boys in that class. At least कितने हो सकते हैं? Now just calmly think, बहुत आराम से सोचिए कि आपके पास 9 लड़कियों में से एक जो है वो 70% लड़कियां, मतलब 70% दे आर लाइक दे आर मार्क्स आर इन साइंस 70% और एटलीस्ट 70%, राइट? तो इसका मतलब जो यहाँ पे लड़कियां हैं वो इंटीजर हो सकती हैं। तो यहाँ पे 1/9 ऑफ द गर्ल, 1/9 ऑफ द टोटल गर्ल, तो जी कैन बी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है इट कैन बी 9, इट कैन नॉट बी लेस देन 9। कम से कम 9 तो होगा, अगर 8 हो जाएगा तो फ्रैक्शन में लड़कियां आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो लड़कियां हो सकती हैं मिनिमम 9 हो सकती हैं, और जितनी लड़कियां हैं उतने बॉयज भी होंगे चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो 9 आएगा। प्लीज आप इसको एक बार सोचिए। अगर आप और भी तरीके से करते तो माइट बी पॉसिबल कि थोड़ा सा आप फंस सकते थे, बट वो क्वेश्चन ईजी था। इट इज ऑल अबाउट लैंग्वेज, हाउ यू इंटरप्रेट द लैंग्वेज, राइट? सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो नाउ। Ajay ordered 4 pair of black socks and some additional pair of blue socks, right? तो ब्लैक कलर के उसने कुछ सॉक्स ऑर्डर करे हैं और कुछ ब्लू कलर के किए हैं, बट ब्लैक कलर का जो पेयर है वो 4 है, क्वांटिटी 8 हो जाएगी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द पेयर एंड सम ऑफ द ब्लू, तो लेट इट बी x, राइट? द प्राइस ऑफ द, दिस इज द क्वांटिटी, नाउ इट इज सेइंग द प्राइस ऑफ द ब्लैक शूज पर पेयर वाज प्राइस द ब्लू, राइट? तो इसकी हम a मान लेते हैं, तो ये इसका 2a इसका प्राइस हो जाएगा, राइट? दिस इज द प्राइस। When the order was filled, it was found that the number of pairs of the two color had been interchanged. ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर जो कि प्लेस हुआ था, बट एक्चुअल में क्या हुआ है? एक्चुअल जो ऑर्डर हुआ है उसमें क्वांटिटी स्वैप हो गई, नंबर ऑफ पेयर्स। इसका मतलब यहाँ पे इसने x पेयर ब्लैक के कर दिया और 4 पेयर इसने ब्लू के कर दिए। क्वांटिटी जो है चेंज होगी, लेकिन प्राइस तो सेम ही रहेगा, प्राइस सेम रहेगा। ड्यू टू दिस इंक्रीज द बिल बाई 50%, राइट? तो जो भी बिल था अभी 50% से बढ़ जाएगा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स टू द नंबर ऑफ पेयर ऑफ द, ठीक है, ओरिजिनल ऑर्डर में। तो आपको x का वैल्यू निकालना, फिर रेशियो निकालना, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं ओरिजिनल बिल की बात करूंगा, ओरिजिनली कितना बिल बनने वाला था, तो ये बनता 8a, मैं मल्टीप्लाई करेंगे इसको प्लस ax, एंड न्यू बिल कितना बनेगा, या जो आपके पास चेंज्ड बिल है वो कितना बनेगा? दैट वुड बी 2ax प्लस 4a, राइट? जिसकी वजह से 50% का हाइक हो गया। अब बच्चा यहाँ पे 50% के चक्कर में कैलकुलेशन बढ़ा सकता है, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैं आपको नए पेज पे लिखता हूँ यहाँ पे,
दैट इज ओरिजिनल और न्यू बिल की बात करते हैं. ओरिजिनल बिल वाज 8a plus 8a plus ax and new bill was 2ax plus 4a. 2ax plus 4a, right? Now I can take out a तो कॉमन आ जाएगा तो 8 plus x and this will be 2x plus 4, so there is no use of a actually, right? अब यहाँ पे जो रेशियो है 50% से बढ़ गया, मतलब पहले 100% बिल था, अभी जो नया बिल है वो 50% बढ़ जाएगा, इसका मतलब 150% हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू का. तो यहाँ पे अगर आप इसको 100x या 100 कुछ और ले लेते हैं, बिकॉज आई हैव टेकन द x, 100y वाज द ओरिजिनल बिल, तो न्यू बिल विल बी 150x. तो यहाँ से आप रेशियो में इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एल्स विल बी टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व दिस, सो दैट रेशियो वुड बी 2:3. So this is 24 plus 3x should be equals to 4x plus 8. तो यहाँ से 16 equals to x. So x was 16. Means the original quantity of the blue socks was 16 pairs, right? We have to find the ratio of the number of black to the blue. ठीक है, तो black was 4 and blue was 16, so my answer would be 1:4. So option number C यहाँ पे correct. So hopefully you enjoyed the questions, and if you have any question you can send the question in the description, or you can ask me for the email so that I can provide you the same, and I'll be providing you the solutions also. And in the next video I'll be trying to upload more questions from the different section like profit loss discount, time and work. कुछ क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा, अच्छे क्वेश्चन, so that you can have the, I can say, रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन यू कैन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस. सो बाय, टेक केयर.